Good morning, all of you. First of all, very good morning, all of you. I hope you all are well. This is my appeal to you all that you should be at home. निकलो Hey, who's talking? Mute yourself, I said. I'm just muting you all, okay? So this is my general appeal that you should be at your home, and if it is not required, don't go outside, because the pandemic, you know the situation of this pandemic. And I just appealing you that advise your parents that they should do the doses of vaccine so that they will protect themselves from this COVID, okay? The second and the most important thing is that you should follow all the SOPs, okay? And if it is not required, don't go outside, you know. And you know that the situation is worse now, and all of us have heard the news that someone has died, someone is died due to COVID and all, you know. This is all because of this deadly virus. So be aware, and it's your responsibility that you should be aware people, other people as well, you know. You have to make awareness. If someone asks you what to do, you should aware the people that you should follow all the SOPs that is set by the government, and make the social distancing, okay? And in case you find anyone in your home or in your knowledge that he is suffering from fever, you just immediately inform to the doctor, okay? Don't hide these things, because if you hide this, the God will hide you, okay? So it's important for you that if anyone in your knowledge find any symptoms like cough, cold, fever, and suffocation, and problem in inhaling and something like this, you should be informed to doctor, okay students? This is my appeal to you all. Okay, now the moving to our business part, that is computers. I want to know how many of you still not submit the computer work. I want to know. सर हमने कर दिया था। मैंने पूछा जिसने नहीं किया है, मैंने सिर्फ उसका नाम पूछा जिसने नहीं किया है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हर्ष, आपने नहीं किया बेटा? सर अभी कर देंगे, अभी जस्ट अभी कर दीजिएगा, ओके? इस क्लास के बाद कर दीजिएगा, इट्स इंपॉर्टेंट, ओके? अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको पीडीएफ बनाने का ट्यूटोरियल बना के भेज दूंगा, ओके? पीडीएफ कैसे बनाते हैं, ओके? इफ इट इज रिक्वायर्ड, बट माय अपील टू यू ऑल that you should be submit the work, okay? Computer is the most important subject as far as your future. So you know aware about the future, and you also know that the computer is the only subject which helps you to get the good job, okay? To get a handy job, right? So don't make it don't take it as a taken for granted. You have to make some kind of dedication to this subject, okay? You have to show me the dedication, right? Second thing, I have teach you three chapters. I have explained you three chapters. Do you have any problem on these three chapters? Any part which is not understand by you? Don't look at your friends. Just do what your heart says. Do what your mind says, okay? You have any problem in any topic, you should ask. अगर किसी टॉपिक में, किसी चैप्टर के किसी टॉपिक में समस्या है तो आप पूछिए, okay? No problem in this. Otherwise, I will start a new chapter. Okay? Okay? बच्चों, स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 3 तक सब कंप्लीट है? यस सर। ओके, तो बच्चों आज मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर। हालांकि कंप्यूटर में सारे ही चैप्टर बड़े इंटरेस्टिंग है, पर एक और नया कंसेप्ट आप सीखने वाले हैं, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। किसके बारे में बात करने वाले हैं? कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। इसमें हम लोग बहुत सारी चीजों पे डिस्कस करेंगे, बहुत सारी बातों पे बात करेंगे। और आज आपका जो जियो है, फाइबर है, ये सब जियो फाइबर नेटवर्क है, या जितनी भी चीजें हैं हम सब उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है? बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत अच्छा चैप्टर है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं
आपको इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ये नेटवर्क संबंधी समस्याएं कभी नहीं आएंगी, राइट। मगर आपको मेरा सपोर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले बात तो ये है कि जो बच्चे क्लास अटेंड नहीं कर रहे वो सिर्फ वो खुद जाने, राइट। जो चैप्टर है आज का वो चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, ठीक है, कंप्यूटर चैप्टर 4, दैट इज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। ओके बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली this era, this 21st century is all about sharing information, right? ये जो 21st century है, इसमें जो सबसे ज्यादा जिस चीज में जो चीज इवॉल्व हुए वो है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, राइट। बिकॉज यू नो आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम। क्या है? टाइम, राइट। टाइम की वैल्यू ज्यादा है। ओके आज जो भी आप कितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं वो आपसे कहेगा कि आप मुझसे पैसा ले लीजिए पर मुझसे मेरा टाइम मत मांगिए, राइट। यानी कि जितने भी अमीर लोग होते हैं, जितने भी रिच लोग होते हैं, जितने भी सक्सेसफुल होते हैं, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जितने भी बिजनेसमैन होते हैं, जितने भी क्रिएटिव थिंकर्स होते हैं, जितने भी साइंटिस्ट लोग होते हैं, देयर टाइम इज देयर मनी। ओके, देयर टाइम इज देयर मनी, राइट। उनका समय ही उनका क्या है? पैसा है, राइट। सो अब बात ये आती है कि अब हम लोग जिस एरा में रहते हैं उस एरा में जो चीजें बहुत ज्यादा इवॉल्व हो गई, क्योंकि हमने साइंस में काफी कुछ तरक्की कर ली है। आपने सुना होगा आजकल, यू हर्ड दैट एक स्पेसएक्स नाम की कंपनी है जिसके फाउंडर है मिस्टर इलॉन मस्क। नाम सुना है आप लोगों ने मिस्टर इलॉन मस्क का? इलॉन मस्क का नाम सुना है। ये बेटा उन्होंने ऐसे रॉकेट बना, उन्होंने प्लान किया कि 2030 तक वी विल रीच ऑन द मून। हम कहाँ पहुंच जाएंगे? सॉरी, वी रीच ऑन द मार्स। हम मार्स में पहुंच जाएंगे। कहाँ पहुंच जाएंगे? मार्स में। उन्होंने ऐसा प्लान कर रखा है और उनकी कंपनी का नाम है स्पेस एक्स। क्या नाम है? स्पेस एक्स, राइट। उस स्पेस एक्स नाम की जो कंपनी है, उस कंपनी ने प्लान किया है कि 2030 तक हम लोग वहां के जितने भी मार्स के रिसोर्सेज उनका यूज करना चालू कर देंगे, वहीं से वाटर बनाएंगे, वहीं पर हम लोग जो है एग्रीकल्चर करेंगे, वहीं पे हम लोग रहेंगे, है ना। और वहीं पे हम लोग ह्यूमन वहां पे जितनी भी एयर है उसमें से एयर से ऑक्सीजन बनाएंगे और ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे, राइट। हमें सबसे दो तीन चीजों की जरूरत है, वो सब वहीं पे हम लोग करेंगे। ये काम लोग 2030 तक कर लेंगे, राइट। अब सोचिए इतनी दूर से मार्स करीब हमसे 40 या 50 लाख किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, राइट, हमारे प्लैनेट अर्थ से। ठीक है, मैं आपको एग्जैक्ट डिस्टेंस बताता हूं। बेटा एग्जैक्ट डिस्टेंस है 3325.82 किलोमीटर। एग्जैक्ट जो डिस्टेंस है बच्चों, वो डिस्टेंस है वो इतनी है 325.82 मिलियन किलोमीटर। समझ रहे बेटे आप मेरी बात? इतनी डिस्टेंस है, राइट। 3.82 मिलियन किलोमीटर जो डिस्टेंस है मार्स से अर्थ की, और यहाँ पे हम लोग 2030 में जाने वाले हैं। समझ रहे हैं? दिस इज अ फैक्ट। दिस इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी। इसे पॉसिबल हुआ है साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से, और ये होने वाला है। अब हम लोगों ने रीयूजेबल रॉकेट बना लिए हैं, पता है आपको? यू नो दैट द रॉकेट दैट इज प्रोपेल्ड फ्रॉम द अर्थ विल बैक टू द पोजीशन वेयर स्टार्ट। जहां से उनको लॉन्च किया गया था, दे विल बैक टू देयर पोजीशन। ओके, वहीं पे वो टेक ऑफ कर लेंगे। ऐसी टेक्नोलॉजी इन्होंने इवॉल्व कर ली है, मिस्टर इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने, राइट। अब बात आती है बच्चों कि हमने आपको सब कहानियां क्यों बताई, है ना। हमारा इससे क्या मतलब? पूछ, आपके मन में दिमाग में बात आई थी नहीं आई थी? ये वाली बात बताइए, आई थी? नहीं आई थी? चलिए नहीं आई थी, कोई बात नहीं। देखो बच्चों, इस बात को बताने का मतलब बस इतना सा है कि ये सारी की सारी चीजें पॉसिबल हो पाई जस्ट बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। आज हम लोग मार्स तक सिग्नल भेज सकते हैं, है ना।
हम लोग आज मार्स तक यानी 325.82 किलोमीटर तक अपने सिग्नल को भेज सकते हैं। अरे यहाँ छोड़िए, हम लोग आज जुपिटर तक सिग्नल भेज सकते हैं, राइट। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, ठीक है। कहाँ पे गूगल का सर्वर कहाँ पे रखा हुआ है, आपको जस्ट सेकंड्स में आपको आंसर मिल जाता है, राइट। ये सारा पॉसिबल है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज की वजह से। किससे पॉसिबल है? कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज की वजह से। और आज मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं कुछ भी बुकेश नहीं पढ़ाने वाला हूं, मैं सबको लेटेस्ट पढ़ाऊंगा, ओके। मैंने अभी तक जितने भी चैप्टर्स पढ़ाए हैं, मैंने आपको हमेशा लेटेस्ट चीजें पढ़ाई हैं, राइट। यस सर। कभी भी कुछ भी पुराना घिसा पीटा नहीं पढ़ाया मैंने आपको। मोटिव क्या है? आप लोग समझे, सीखे, जाने, डिस्कस करें, आपके मन में डाउट आए और आप अपने क्वेश्चन राइज करें मुझसे, राइट। चलिए बात करते हैं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है बच्चों, व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन क्या है, तू मुझे बताएगा? बातचीत। हाँ, काइंड ऑफ एक तरीके की, ओके। So, way of interaction. वेरी गुड। आई थिंक यश मिश्रा, राइट। Yes, sir. Very good, Yash. Very good. I like your approach. Actually, the guy who said earlier is also right, but you know it is not an appropriate definition. The communication means you have to interact. Okay, interaction is that way that I have to mute my microphone, and even I have to talk you with the help of signals. Okay, I am with the help of my gesture, my hand-eye coordination. I will tell you what to do, what not to do. Okay, this is also a form of communication, right? A communication is also that you will not see me. I have to turn off my camera. You just hear me. You just listen me. This is also kind of communication, right? Communication is also that you will see the signboard and you said a symbol is written like this. That means you have to move right. You have to move upward. You have to move downward. Okay. This is also a signal. This is also a symbol. These are the symbols, which is also a form of communication. So communication is a broader term. Communication is an umbrella term which contain lots of things, right? Got it? Communication is with the help of the symbols, communication with the help of mouth, communication with the help of sound, communication with the gestures, communication by your facial expressions. Okay, so all these are the form of communication, but we are discussing computer. So definitely if we discuss computer, so we will definitely discuss in terms of technologies, right? In terms of technology. So nowadays if you talk about communication in terms of computer, so communication means to interact one system to another system, one mobile to another mobile, one computer to another computer by some medium. Okay, communication means to interact two or more computer with each other by some medium. Got it? This medium would be wired or wireless. This is another case. Okay, but if you talk about communication means simply to just interact with each other by some medium. Got it? बताइए। यश, कुशाग्र, got it? Yes, sir, we got it. Okay, so if you talk about a technical definition, so in technical definition, computer is just a communication of the two or more interacting two or more computer by some medium. It's called the computer communication. Okay. Defined as to communicate each other by the means of some
Okay, the computer communication defined as to communicate, communication of two or more computer. Yeah, in terms of communication, you have to interact. Okay, interact means एक दूसरे के सामने. Okay, एक दूसरे से बातचीत. Okay, interact of two interaction of two or more computer with each other by the means of some medium. Okay, got it? Got it? बच्चों, अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, बहुत आसानी से समझिएगा इस बात को, है ना. आप लोगों ने हम लोग ये जो बात कर पा रहे हैं, ये जो हम लोग की जूम मीटिंग हो रही है, क्लाउड मीटिंग चल रही है, क्या ये कंप्यूटर कम्युनिकेशन का एक एग्जांपल हो सकता है? यस सर. Yes, sir. कम्युनिकेशन कोई बता सकता है मुझे? वायर्ड है कि वायरलेस मीटिंग है? ये Wireless. वायरलेस, राइट. पर ये भी तो एक कम्युनिकेशन ही है, कंप्यूटर कम्युनिकेशन ही के अंडर आएगा ना. यस सर. इसमें कितने कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कितने बच्चे इस क्लास में है, वो सारे एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, राइट. Yes, sir. तो ये सारी की सारी जूम क्लास है, इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन. गॉट इट? यहाँ पे कोई समस्या यहाँ तक ये बताइए आप मेरे बच्चे, कंफर्म बताइए. एक्चुअली कंप्यूटर कम्युनिकेशन कई तरीके से एस्टेब्लिश कर सकते हैं हम लोग. हमने आपको बताया था देयर आर सम मीडियम. ओके, द मीडियम शुड बी नेटवर्क इशू. द मीडियम would be हेलो बोलिए बताइए, जल्दी बताइए. हाँ, चलो मैं कभी बताता हूँ, ठीक, थोड़ी देर में. ये बच्चों, ये मीडियम जो होता है वायर्ड हो सकता है, वायरलेस हो सकता है, ठीक है. अब बात करते हैं कंप्यूटर. पहले बच्चों इतना समझ में आ गया कंप्यूटर कम्युनिकेशन क्या होती है? समझ में आई बात? अली हमजा बेटा, समझ में आई बात इतनी? यस सर. तन्मय बेटा, तन्मय मिश्रा बेटा, समझ में आई बात? Yes. कुशाग आ गई ना? ठीक है. यस सर. चलिए ठीक है. अब बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क की. किसकी बात करते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क. व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क? नेटवर्क क्या होता है बच्चों? ये जो आप लोगों की हम लोग की जूम मीटिंग हो रही है, ये भी एक कंप्यूटर नेटवर्क है. ये भी एक कंप्यूटर नेटवर्क है. तो आप समझते हो व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क? कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? You have to write it. It is network interconnected. It is a interconnected. It is a network of interconnected group of independent computers. Okay. It means that we can attach both computers and devices to network.
देखो इस डेफिनेशन को समझो क्या है. What is computer network? It is a network of interconnected group of independent computers. Okay, it means that we can attach both computer devices to a network. बच्चों जो आपका जो मोबाइल है वो एक डिवाइस है. क्या एक डिवाइस है, राइट? तो समझिए यहाँ पर कितने सारे डिवाइस हो सकते हैं. मान लीजिए एक डिवाइस 1 है, मैं बहुत सारे डिवाइसेस बनाता हूँ. सॉरी, डिवाइस 1 है सपोज, डिवाइस 2 है, डिवाइस 3 है, राइट? तरीके से डिवाइस 4 है और ये मेरा कंप्यूटर है, राइट? दिस इज माय कंप्यूटर, दिस इज डिवाइस 1. डिवाइस 1 का मतलब मोबाइल. ओके, ये डिवाइस 1 है, दिस इज डिवाइस नंबर 2, दिस इज डिवाइस 3, राइट? दिस इज माय कंप्यूटर. हम लोग एक नेटवर्क में जुड़े हुए हैं. कैसे जुड़े हुए हैं? विद द हेल्प ऑफ जूम क्लाउड. Sorry बच्चों, there is a network issue from my side, right? Sorry for that. Suppose there are 4 devices. Device 1, device 2, so this is device 3, right? Yes, sir. And this is my computer. This is device 1, device 2, device 3, right? Yes, sir. This is my computer system. Computer. If we are in network, we are connected with this Zoom app, right? We are connected with this Zoom App. So this Zoom app will simply do what? They just interact with each other. Okay, we all are connected with this Zoom. And all these are connected with this Zoom app. Okay, my computer system is connected with Zoom app. Okay, suppose this D1 is for Aditya computer. This is Yash Mishra. D2 is the Yash Mishra device. D3 is Kushal Agnihotri device. Okay, and this computer system is for Siddharth Gupta, right? So all these are this basically forms the computer network, right? Got it or not? Yes, sir. समझ आई नहीं बात? ये सब इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है. अब ये दोनों ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, राइट? यानी कि अगर आप लोग चाहे तो एक दूसरे से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं प्राइवेटली, राइट? ये इनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, इनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, और ये इनसे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये इनसे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट? कर सकते नहीं कर सकते हैं? Yes, sir. दिस इज इंटरकनेक्टेड. सब सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. गॉट इट? Yes. गॉट इट? Yes, sir. So this is basically a computer network where each node, एक्चुअली बेटा जो नेटवर्क होता है कंप्यूटर का, उसमें कंप्यूटर को नोड बोला जाता है. तो ये आपका जो डिवाइस एक तरीके का नोड है. इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर, इन टर्म्स ऑफ नेटवर्किंग, योर डिवाइस इज कॉल्ड अ नोड. आपका जो डिवाइस उसको क्या बोलते हैं? नोड. NODE, नोड. ओके, तो डिवाइस इज बेसिकली कॉल्ड अ नोड. ओके, तो एवरी नोड इज कनेक्टेड विद अदर नोड. ओके, दिस इज ऑल अबाउट कंप्यूटर नेटवर्क. गॉट इट? गॉट इट और नॉट? Yes, sir.
information in a computer network is usually stored. Sir, हाँ, sir, our book is also a type of communication. you can say, yeah, it is a kind of communication where you have learned new things, you have got the idea. So this is also a part of communication. Okay, sir. मैंने आपको बताया था कि हम सभी लोग कंप्यूटर के जितने भी नेटवर्क है सबको एक्सेस कर सकते हैं, जो भी उसके अंदर जुड़े हुए हैं। यानी कि अगर जूम ऐप में हम जुड़े हुए हैं आपसे, आप जुड़े हुए हैं हमसे, तो हम लोग कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं एक दूसरे के, राइट? कर सकते हैं ना? कुछ बच्चे स्क्रीन को मेरी गंदा करने लगते हैं, याद है? Yes, sir. तो वो भी आप, ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि वी आर कनेक्टेड इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। गॉट इट? हमें कंप्यूटर नेटवर्क की जरूरत क्यों पड़ती है? अब क्वेश्चन ये आता, व्हाई वी नीड दिस कंप्यूटर नेटवर्क। मन में बात आई आपके कि हमें कंप्यूटर नेटवर्क की जरूरत क्यों है? बताइए। सर फॉर कम्युनिकेशन। हाँ, कम्युनिकेशन भी है, वेरी गुड, बट इसके और भी रीजंस हैं, राइट? बच्चों एक बात पहले बताना चाहता हूं, मैं चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 2 आज आपको भेज दूंगा, ठीक है? आप उसको राइट डाउन कर लीजिएगा कंप्यूटर की नोटबुक में, राइट? मैं भेज देता हूं अभी आपको ग्रुप में। It saves our time. क्या? Sir, it saves our time. हाँ, ये टाइम भी सेव करता है, वेरी गुड। Sir, it reduces our efforts. क्या? Sir, it reduces our efforts. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये फिजिक्स नहीं है, it reduces the human efforts, ये कुछ नहीं है, ओके? खैर चलिए बच्चों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। मैं आपको लेक्चर चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 2 दे भेज रहा हूँ, ठीक है? इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 2 में भेज रहा हूँ। लेक्चर नंबर 1 में आपको पहले भेज चुका हूँ ना? Yes, sir. नोट डाउन करिए, ओके? चलिए ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ओके? सब बच्चे अपना काम कंप्लीट करेंगे और जो डाउट होगा मुझसे पूछेंगे। चलिए, थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू।